Okay. So good afternoon, everyone. On behalf of GJPC, I would like to welcome all of you in these webinar series, GJPC Uncut 2020. We have today's topic is labor laws, and to address that topic, we have leading labor law consultant, Advocate Ramesh L. Soni. But before he commences with his details on the webinar, I would like to request Mr. Sailesh Sanghani, who's with us today, convener exhibitions, to address us and give opening remarks. To you, Sailesh. Yeah. Good afternoon, everyone. So on behalf of GJPC, I welcome all of you. And we also to this webinar Uncut Series 2020. I would like to introduce you to Mr. Ramesh Soni, who is a labor law lawyer. And the amount of degrees that he has got, if I start with them, I think the whole seminar we will be talking about his degrees and his all his things that he has done in his life. But currently, I know one thing, that he has got some 340 clients in his list that he consults to, and he is doing a lot of consultations in our industry also to quite a few companies. And with this COVID situation and with the current last 4 to 5 months problem that we have gone through with our employees and what the employees have gone through with us, I think the best light that if anybody can shed on this whole subject is going to be Ramesh Bhai. And so without taking any more time of Ramesh Bhai away from this subject, I would request Ramesh Bhai to take up from here, and please share all the lights. My request to everyone is that whatever questions you have, there is a question box in the bottom, Q&A. Please type your question in this. Ramesh Bhai, my request to you is this, that we have people who speak English, Hindi, Gujarati. So मुंबईया भाषा में थोड़ा बात करेंगे आप, तो अच्छा रहेगा कि थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, थोड़ा गुजराती मिक्स रहेंगे, तो पब्लिक सब और समझेंगे और उनके लिए भी आसानी रहेगी. तो कोई ऐसा अच्छा सब्जेक्ट आपको लगे जिसमें आपको लगे कि इंग्लिश में भी बोलना चाहिए और हिंदी में भी बोलना चाहिए, तो आप दोनों में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 2 बार रिपीट कर लीजिए, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में, खास करके व्हेन इट कम्स टू लेबर एंड व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स commonly we are making, so then everybody will enjoy this whole thing. Thank you very much. So please, Ramesh Bhai, please take it. Thank you, Sailesh ji, and thank you, Dolly ma'am, for your support. Just to be with GJEPC India, it's my pleasure to meet you all. So friends, good evening to everybody. This very good evening of Janmashtami. No doubt we are not celebrating this time, but I welcome you for your own institution, JGEPC India, for the knowledge sharing session on the labor laws. Friends, today I'll be giving my views and what is the real scenario about different labor laws. Particularly, first we'll start with the scenario of lockdown. Then what Government of India has declared 3 schemes under the Provident Fund to the stakeholders so they can take the benefit. Then we will be discussing about ESI, bonus, gratuity, time prevails. I'll take other acts also. Friends, I am in the field for labor law consultancy. I am having as on today more than 340 monthly returnship clients, and I give training pan India, पूरे भारतवर्ष में, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता. Private training, even I have given training to government officials. Government of Maharashtra also appointed me to give training to their officers. Even the faculty of Amazon, Vodafone, Tata Power, like that, so on. So my pleasure to be with you. So friends, just I am starting my session. Due to the coronavirus, which should not spread in the entire country, hence on 25th of March 2020, our Honorable Prime Minister Shri
Narendra Modi ji has declared lockdown in the entire country. Then gradually lockdown 1, 2, 3, 4, 5 extended. As on today also, in so many states of our country, still lockdown is going on, and unlockdown has also started. Still lockdown is that up till the 31st of August 2020, and accordingly on 29th, because of this lockdown and to just prevent the spreading of this scenario COVID in our country, Ministry of Home Affairs, MHA, they have issued that order, not notification, order in our country, stating that this order is a very strict order. I'm just reading each words. All the employers, be in the industry or in the shop and commercial establishment, shall make payment of wages of their workers at their workplace on the due date without deduction for the period their establishment are under closure during the lockdown. This they says the lockdown period up the, which has started from 25th March to extended till 17th of May 2020, and from 18th May this MHA Ministry of Home Affairs, they have withdrawn that lockdown. So this was the 54 days. So government, this Ministry of Home Affairs, they says 54 days का आपको पगार देना है, काम पे आए नहीं आए तो भी आपको पूरा पगार you have to pay, full salary you have to pay, as well as you have to pay salary on time. समय पे आपको salary देने आए. Meaning is that in time is as on today current payment of wages act, if you are having 1000 or less than 1000 employee, आपके पास 1000 से कम employee होंगे, worker होंगे, तो आपको पगार on or before 7th day of following month, 7 तारीख तक पगार देना चाहिए. And if you are having 1000 or more employees, workmen, then you have to pay salary wages on 10th day of following month or before that. So, and they said without deduction, किसका भी पगार काटना नहीं है. And see, ministry का intention क्या था? इनका intention था, their intention was that दो workers, migrant workers है, जो बाहर से आए हैं, मीन्स अपने कंट्री में से अपन गांव से आए हैं, कोई शहर से आए हैं, so वो वापस चले न जावे. That's why this ministry has issued the notification though they can stay there and फिर से अपना मशीनरी जोर से चालू हुआ. This was the only idea of the Ministry of Home Affairs, and accordingly they have issued notification, pay full salary wages, no deduction, pay it on the time. Accordingly इसके बाद में क्या हुआ, उनका notification आ गया, तो so many employers, so many industries, they say how can it be possible? ऐसा कैसा possible है? There is no production, things are not coming, manufacturing होता, monies are not, पैसे आते नहीं है, जाते नहीं है, और आप कहते हैं कि पूरा पगार दीजिए, full पगार, कोई भी deduction नहीं कीजिए. How it is possible? So employers, business community, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो पूरे भारतवर्ष में से about 29 employers association including union, they have filed writ petition against the government of India in our honorable Supreme Court. Supreme Court में उन्होंने एक writ petition याचिका दाखिल की, उसमें उन्होंने बताया कि हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं होता है, पैसे आते नहीं है, जाते नहीं है, और आप बोलते हैं पूरा पगार दीजिए, किसका पगार नहीं काटिए, तो कैसा, हाउ इट इज पॉसिबल? तो दिस मैटर दे अबाउट 29, मैं उनका नाम भी बताऊंगा, उन्होंने याचिका दाखिल की अपनी सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका देख के दे हैव इश्यूड इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस भेजी, आप इसका जवाब फाइल करिए, प्लीज फाइल द रिप्लाई अबाउट दिस रिट पिटिशन. So first hearing has came on 27th April 2020. In this case पहला hearing आया, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपने सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार जी मेहता अपीयर हुए. He has requested government on behalf of government to the Supreme Court, please give us 2 weeks time, 2 week का हमें समय दीजिए
सुप्रीम कोर्ट से ओके आपको दिया गया. नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हैज बीन केप्ट ऑन द 15th May 2020. 15 मई को बताया गया. अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट एडवोकेट ने कोई भी कारण की वजह से दे हैव नॉट फाइल एनी रिप्लाई फाइल नहीं किया. तो they have requested again, government advocate has requested, kindly give us 1 week time. Supreme Court has given 1 week time, but they have put one condition: no coercive action should be taken against the any employer for the non-payment of less payment of salary. Meaning है कि कोई भी कंपनी ने, फैक्ट्री ने पगार नहीं दिया, कम पगार दिया, तो उनके सामने कोई भी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी ऑर्डर आवे नहीं तब तक. तो लेबर डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन नहीं ले सकता है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दे शुड नॉट टेक एनी एक्शन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस. पगार नहीं दिया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट एडवोकेट के बताया आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्यों आपने जवाब अभी तक फाइल नहीं किया है. 26 मई को फिर से मैटर बोर्ड के ऊपर आई. अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट एडवोकेट बोला सॉरी और 1 वीक का समय दीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने वो भी ऑब्लाइज किया और उन्होंने बोला अभी लास्ट चांस है, 4 जून तक आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा. एंड ऑन 4 जून गवर्नमेंट एडवोकेट हैज फाइल्ड द रिप्लाई. उन्होंने जो नोटिस जो 29 एम्प्लॉयर्स ने, एसोसिएशन ने नोटिस जो रिट पिटिशन फाइल किया था, उनका रिप्लाई they have filed. See, they have filed interim reply. मेरा वो बोलते हैं हमारा पूरा रिप्लाई नहीं है, इंटरिम है. आप बोलते हैं जल्दी जल्दी, तो हम we are just giving that. In that they have mentioned that गवर्नमेंट एडवोकेट ने बताया कि see ये लॉकडाउन किसके लिए था, कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो वापस अपने गांव चले न जावे, इंडस्ट्री को नुकसान न होवे, उसके लिए हमने कि ऐसा ही किया था कि वो समय पे पगार दीजिए, पैसा काटिए नहीं जाए, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर है दे कैन स्टे हियर ओनली, दे कैन नॉट मूव. दैट वाज ओनली हमारा इंटेंशन था, और कोई हमारा इरादा नहीं था. दैट्स व्हाट गवर्नमेंट ने रिप्लाई फाइल किया. और उन्होंने गवर्नमेंट एडवोकेट ने रिप्लाई में वो भी फाइल किया. सपोज कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी बोलती है कि हम पगार नहीं दे सकते, हमारी परिस्थिति नहीं है, हमारी इनकम नहीं है, आमदनी नहीं है, और our balance sheet is not up to the mark. How can we pay? So government advocate has mentioned in the reply that those who do not want to pay the salary, then they should file the audited balance sheet in the Honorable Supreme Court. Suppose वो दे नहीं सकते हैं, तो audited balance sheet सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे. वो गवर्नमेंट एडवोकेट ने वो रिप्लाई उन्होंने फाइल किया. सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया और 4 तारीख को कोई भी जवाब नहीं दिया. And again on 12th June 2020 सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया. इंटरिम ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंटरिम ऑर्डर, जजमेंट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अनबायस बोलता है एकदम बैलेंसिंग ऑर्डर पास किया ताकि सबको सुविधा रहे, एवरीबॉडी बी कंफर्टेबल. तो इन दैट ऑर्डर दे हैव मेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मालिक और कामगार और स्टाफ, they can sit together and they can decide the percentage or how much amount of salary is payable. कितना पगार देना चाहिए, ज्यादा पगार देना चाहिए कि परसेंटेज में देना चाहिए, कि कामगार स्टाफ को भी समझना चाहिए कि हमारी कंपनी की पोजीशन ऐसी है. तो आप साथ में बैठ के हेल मिल जुल के यू कैन कम टू द डिसीजन एंड प्यार से. सपोज यू आर हैविंग यूनियन इन योर एस्टैब्लिशमेंट, आपके कंपनी में यूनियन है, then you can take union into confidence and discuss with them. उनके साथ भी आप वार्तालाप कीजिए और पॉसिबल होगा तो डिस्कस करके प्लीज ब्रिंग सम सॉल्यूशन. आप कुछ सॉल्यूशन लाइए ताकि सभी को पीसफुली, शांति से कार्य हो सके. एंड इन केस सुप्रीम कोर्ट has also mentioned that in case negotiation नहीं हो सका, कोई अडामंट हो गए, कोई बोलते नहीं इतना चाहिए, मैनेजमेंट इतना नहीं दे सकते हैं, then you can go to the conciliation officer, लेबर कमिश्नर के ऑफिस में जाके उनके साथ बैठ के भी आप समझौता कर लीजिए और मैटर सुलझाइए. इन केस वहां भी समझौता नहीं हुआ कोई कारण से, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मैटर लेबर कोर्ट में जाएगी. बट लेबर कोर्ट में जाके ऐसी रहेगी, क्योंकि अभी जो मैटर है
अपने सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन 12 जून को बताया गया था कि जुलाई के लास्ट वीक के पहले गवर्नमेंट एडवोकेट को फाइनल जो भी उनको कहना है वो रिप्लाई फाइल करना चाहिए। एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था कि शायद वो जुलाई एंड तक अपना फाइनल जजमेंट देंगे, मगर अभी तक नहीं आया। अब हम जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष का जो भी केसेस है सुप्रीम कोर्ट में बहुत केसेस है, तो समय की सुविधा के हिसाब से हम चाहते हैं कि ये महीने में सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट देगी, ताकि जो भी जजमेंट देगी वो आगे उसका वी कैन गो फॉरवर्ड, कैसा अमल करना वो देखना है। सुप्रीम कोर्ट न्याय से देगी, हमको मालूम है कि बिकॉज अनबायस्ड और बहुत अच्छा जजमेंट देगी, ताकि किसी को कुछ भी तकलीफ ना हो। तो ये जरा मैं इंट्रोडक्शन था, मैंने पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं आप सभी के साथ इसके साथ बात करूंगा। तो वी विल जस्ट सी दैट माय पीपीटी। थैंक यू फॉर दैट। Just a minute, just I'm doing my PPT. Just a minute, PPT, just moving PPT, a minute. Just a minute, 1 minute only. Just I'm just moving, I have prepared my PPT. Just I'll just a minute only. Expert person is coming. PPT is not moving. Thank you, Pooja. Friends, I'm sorry for the just 1 or 2 minute break. Thank you. See that just if number of employees are 10 or more, आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में 10 की 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, तो अपने देश में इतने लेबर लॉज है आपको एप्लीकेबल होते हैं। ये आपको एक जानकारी के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली आई प्रिपेयर्ड दिस। Provident Fund, ESI Act, Contract Labor, Payment of Bonus, Gratuity, Professional Tax, Minimum Wages, Equal Remuneration, Labor Welfare Fund, Employees Compensation Act, Payment of Wages Act, Shop and Establishment Act, Sexual Harassment at Workplace, Maternity Benefit Act, Factories Act, and Interstate Migrant Workmen Act 1979. Suppose if you are having up to 9 employee, आपके पास 9 एम्प्लॉय तक रहेंगे, 9 वर्कमैन है, तो भी आपको अपने देश में ये कानून एप्लीकेबल है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, लेबर वेलफेयर फंड, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट, स्टेट प्रोफेशनल टैक्स एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए। आज का अपना ट्रेनिंग सेशन है, जो वेबिनार है, उसमें अपन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड वेदर सैलरी वेजेस आर पेएबल, पीएमजी क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो भारत सरकार ने प्रोविडेंट फंड के स्कीम के अंडर जो जाहिर किए, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कोविड-19 एडवांस
under provident fund, that also I will inform you. PF contribution for employer and employees 10% for each 3 month. 12 से 10% जो 3 महीने के लिए कम किया है गवर्नमेंट ने, वो भी आपके बारे में. और बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट लेबर लॉ. सॉरी. लॉकडाउन वेजेस फॉर 54 डेज. लॉकडाउन 25 मार्च 2020 से शुरू हुआ और एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का था वो 17 मई 2020 तक था. सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, लॉकडाउन वेजेस एंड सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमिकेबली अबाउट द पेमेंट ऑफ सैलरी, पगार के बारे में. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है MHA ऑर्डर है and Supreme Court interim order about the payment of salary wages. Understand the reason for challenging the MHA Ministry of Home Affairs order and other state government orders, because Ministry of Home Affairs ने order दिया, बाद में respective सभी state government ने, labor ministry ने, उन्होंने भी order निकाला कि ये period में आपको full salary देना पड़ेगा. Understand and the main ground of the writ petition. What is the order? Interim order passed by the Honorable Supreme Court, being a golden opportunity for employees, workmen and employers how to avail the opportunity. अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो अपॉर्चुनिटी दी है तो उसका कैसा लाभ लें, फायदा उठाएं, उसके बारे में just will tell now. How to exercise proactive approach to solve the lockdown wage amicably, प्यार से सुलझाना है. Directly negotiation with the workmen, or there is a need to involve the conciliation officer, labor commissioner office. COVID-19 lockdown. Honorable Prime Minister of India announced the lockdown due to the COVID-19 from 25th March to 14th April, popularly known as lockdown 1, then gradually lockdown 2, lockdown 3, lockdown 4, lockdown 5, and like that step by step unlockdown also started all over India from 1st July. In certain states, the lockdown continues till the 31st August 2020. Ministry of Home Affairs ordered to pay salary. Due to the lockdown, many migrant people, migrant workers, migrant students were rushing to reach their home to prevent, उनको रुकाने के लिए, उनको अटकाने के लिए, to prevent this. MHA, Ministry of Home Affairs, has issued the order dated 29th March 20. ये order क्या था? As per the point 3 of this order, state that all the employers, be it in the industry or in the shops and commercial establishments, shall make payment of wages of their workers at their workplace on the due date without any deduction for the period their establishment are under closure during the lockdown. On the ground of this order, several state government issued the order for payment of salary to the employees during lockdown. जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया तो अकॉर्डिंगली सभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर इशू के सबको इश्यू किया कि सबको सैलरी देना है. फ्रेंड्स, ये MHA ऑर्डर का कॉपी है. मैंने 275 पेजेस का ई स्टडी मटेरियल बनाया है. मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को आज भेज रहा हूँ इवनिंग में, तो आप सभी को आपका ऑर्गेनाइजेशन मेरा स्टडी मटेरियल, मैंने इसके सैलरी के बारे में, लॉकडाउन पीरियड के बाद में प्रोविडेंट फंड, ESI, ग्रेचुटी, बोनस, सभी के बारे में मेरा राइटअप बनाया है. हैंडबुक ऑन द लेबर लॉ, वो अबाउट 275 से ज्यादा पेजेस का है, तो आप सभी को मिल जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. इसमें ये सर्कुलर भी मैंने इंक्लूड किया है जो लॉकडाउन 29 मार्च का था. पूरा ये सर्कुलर है गवर्नमेंट का, जो मैंने पढ़ा वो लाल लाइन से, लाल, इट हैज मार्क विद द रेड that I already read this, and this has been signed by the Home Secretary, Government of India on 29 March 2020. The employers are or were aggrieved by the MHA order supra on the following. जो कंपनी के मालिक थे, कंपनी वाले थे, डायरेक्टर थे, ऑफिसर थे, CEO थे, वो नाराज हो गए ये ऑर्डर से. क्यों? दिस आर द ग्राउंड. क्यों नाराज हुए? ड्यू टू द लॉकडाउन, एम्प्लॉयर्स हैव लेस और जीरो रेवेन्यू. लॉकडाउन में कुछ आमदनी नहीं है हमारे पास, कुछ इनकम नहीं है, पैसे आते नहीं है, तो हम कैसे पगार देंगे? एम्प्लॉयर्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू
financially to pay the salary wages during the lockdown period. हमारे पास कुछ नहीं है तो हम पगार कैसे देंगे? If employers are forced जबरदस्ती की कंपनी को to make the 100% salary wages during the period of the lockdown, it may lead to the closure of many MSMEs, which will ultimately lead to the permanent unemployment disaster. If आपने प्रेशर किया तो then there are every chances कि कंपनी का बंद करने की नौबत आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और बेकारी बढ़ जाएगी. MHA cannot force the private employer to pay the wages by invoking under the section 10(2)(l) of the Disaster Management Act 2005. So the petitioner has challenged the constitutional validity of the MHA order and prayed the following, questioning the order. उन्होंने जो 29 कंपनी ने एम्प्लॉयर्स ने एसोसिएशन ने किया, उन्होंने बोला ये ऑर्डर आप कैंसिल करो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का, और उन्होंने बताया कि ये कानूनी गैर बंधारणीय है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल है, not valid in the constitution. The MHA order supra is a violation of article 14, 19(1)(g), 21, 265 and 300A of the Constitution of India. This is a provision for doing layoff. There is a provision, आप उनको lay off कर सकते थे, आधा पगार दे, 50% पगार दे सकते थे under the Industrial Dispute Act 1947 to deal with the employees under the situation of नेचुरल कैलामिटी, बिकॉज ये कुदरती आफत है. मान ले जो मालिक ने किया, हमने किसने नहीं किया, एम्प्लॉयर ने नहीं किया, एम्प्लॉय नहीं किया, वर्कर ने किया, पूरे विश्व में नेचुरल कैलामिटी है as the enumerated under the section 25M of the said Act 1947, and therefore the employer is to be allowed to invoke section 25M of the Industrial Dispute Act for the layoff. Layoff में क्या होता है, आधा पगार दिया जाता है. So here sometimes there are certain employer I have seen as on today भी आधा पगार भी नहीं दिया, क्यों? उनका देने की इच्छा है मगर financial position is very bad. Surplus, now say उन्होंने क्या बोला, ESI कॉर्पोरेशन में सरप्लस पैसा, तो उनमें से कुछ पैसा एम्प्लॉयर को दिया जाए तो वो पगार बांटे और डायरेक्ट एम्प्लॉयज को, वर्कमैन को दिया जाए. एज ऑन टुडे रफली 82,000 करोड़ रफली बताया गया है रुपीज आर लाइंग सरप्लस मनी. 82,000 करोड़ सरप्लस मनी है, तो उन्होंने बताया उसमें से आप पैसा दो ना, पगार दो, which is lying in the government should be utilized for the welfare of the employees, workmen. Even 4 साल पहले प्रोविडेंट फंड में भी जो फिगर आया था पार्लियामेंट में, ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर ने बताया था 43,000 करोड़ रुपीस प्रोविडेंट फंड में लाइंग अनक्लेम मनी, क्लेम नहीं हुआ है, जो 1-2 महीना काम करते हो क्लेम नहीं करते, ऐसे 43,000 करोड़ 4 साल पहले का फिगर पार्लियामेंट में बताया गया था. The Ministry of Corporate Affairs has considered the payment of salary wages to employees, workers are as the moral duty of the employer, and the company is not legally liable to pay the wages during the lockdown period. बोलते हैं कंपनी लीगली लॉकडाउन नहीं है, काम नहीं होता, तो हम लोग कैसा नो वर्क नो पे फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाए. ना उन्होंने बताया प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में से भी कुछ पैसा एम्प्लॉयज को और वर्कर को दिया जाए, used for the payment of wages, salary during the lockdown period. All the बाद में एक केस फाइल हुआ तो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लगा कुछ गलती हो रही है, तो उन्होंने 18 तारीख से वो ऑर्डर वापस ले लिया. क्या था वो वापस कैसे लिया उन्होंने, 17 मई को उन्होंने ऐसा नोटिफिकेशन निकाला. As per the latest MHA order dated May 17, the MHA has stated that its previous order of lockdown and lockdown measures will cease to effect from 18th May 2020. उनका आगे का सभी ऑर्डर उन्होंने खत्म कर दिया उसकी एप्लीकेबिलिटी. This would mean that the restrictions on termination of employment and the salary reduction imposed by the MHA order dated 29th March 2020 will no longer be applicable. Any such action would need to be in accordance with the applicable law. तो 18 तारीख से 18 मई से एप्लीकेबल नहीं है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट का जो लेबर लॉ होगा वो एप्लीकेबल होगा. Ministry of Home Affairs order 25th March 2020 point number 3 have been cancelled through an order dated 17th May 2020 with effect from 18th May 2020. Ministry of Home Affairs order 17th May having this is the reference has been issued. ऑर्डर में उन्होंने थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया, whereas save as otherwise provided in
the guideline annexed to the order, all the order issued by the National Executive Committee under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act shall cease to effect from 18th May 2020. 18 मई से उनका कोई भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा. MHA order and petition in the court. The order of MHA has been challenged. ये order जो निकाला था 29 मार्च का, उसको challenge मैंने आपके introduction में बताया. Challenge on the several ground by the employers, including on the ground that the central government ought to provide employers with a subsidy to meet the wage liability during the period there is no work to meet the liability under the order. कुछ subsidy company को देनी चाहिए ताकि वो पगार दे सके. The Supreme Court has called upon the central government to respond. आप जवाब फाइल कीजिए. The Supreme Court will decide on the validity of the order under the Disaster Management Act and the scope and implementation of the order. Petition in Supreme Court against the MHA order के सामने क्या याचिका दायर की गई थी? The petitioner says that a blanket direction to private establishment to pay full salary against no work as arbitrary and violation of Article 14 right to equality and Article 19(1)(G right to do occupation under the Constitution of India. ये गलत है. भारत के बंधारण के अगेंस्ट में आर्टिकल 14 और 19(1)(G के अगेंस्ट में है. आप प्राइवेट एम्प्लॉयर को ब्लैंकेट ऐसा डायरेक्टिव नहीं दे सकते हैं. ये MHA ऑर्डर जो 17 मई को वापस लेने का था उसकी कॉपी है. मेरी स्टडी मटेरियल जो मैं आपको ये स्टडी मटेरियल दे रहा हूं उसमें ये सब की कॉपी रहेगी. This has been signed by Union Home Secretary on 17 May 2020. Supreme Court reserved the final order. Supreme Court ने अभी जो ऑर्डर दिया वो इंटरिम ऑर्डर दिया है. फाइनल ऑर्डर बाकी है, आज भी बाकी है. आज की तारीख में भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर बाकी है. जैसा आएगा मैं आपको बताऊंगा. Several writ petitions were listed before the Supreme Court on 27th April, 15th May, followed by 26th May 2020, on June 2020, and interim order issued on 12th June 2020 after notice for hearing in respect of the MHA order number so and so dated 29th March 2020, which is inter alia given here under. तो अपन मैंने आपको बताया, पढ़ के बताया कि फुल पगार देना है, टाइम पे देने का है और कुछ पगार नहीं काटना है. Now सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? No coercive action against employers on MHA direction to pay full wages to the worker. सुप्रीम कोर्ट passes interim order. सुप्रीम कोर्ट ने interim order पास किया कि कंपनी ने, मालिक ने, एम्प्लॉयर ने पगार नहीं दिया है, कम दिया है, कुछ कटौती की है, तो उनके सामने जब तक फाइनल ऑर्डर ना हो तब तक कोई भी एक्शन लेबर डिपार्टमेंट नहीं ले सकेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं ले सकेगा, पुलिस स्टेशन भी उनके सामने कोई एक्शन नहीं ले सकेगा. In a significant move, the Supreme Court on 4th June 2020 and 12th June 2020 passes an order stating that no coercive, कोई भी सख्त कार्रवाई action should be taken against the employers for the not complying with the direction of the Ministry of Home Affairs notification dated 29th March 2020 for full payment of wages to employees during the lockdown period. उसके सामने कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहिए. Now सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें क्या क्या 12 तारीख को उन्होंने क्या क्या बताया. On 12th June 2020, Supreme Court in their order, these are the brief points. This matter may come for hearing in the last week of July 2020. Till then, no coercive action will be initiated by the authority against the employer, against the company. कोई भी एक्शन लेना नहीं है सरकार को. Union of India will have to file their cause of action on merits within 4 weeks. 4 week के अंदर reply file करें, rejoinder, if any, within week thereafter. There is this is not a final judgment. Final judgment नहीं है. Prima facie, the bench has realized the difficulties of the employer as well as the employee. सुप्रीम कोर्ट जी जो बेंच थी 3 जजेस की, उनको मालूम पड़ा कि कंपनी के मालिकों को, फैक्ट्री मालिकों को
और उनके काम करने वालों को क्या तकलीफ है। सेटलमेंट, negotiation is an opportunity for the employer and must avail this golden opportunity to settle their dispute and submit their memorandum of settlement for bona fide reasons। जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो सेटलमेंट का, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मालिक और स्टाफ और वर्कर, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में बैठ के सेटल करे ताकि दोनों को फायदा हो सके। State, union territory, central government have to facilitate to the parties amicably, not as an authority to pressurize the employer। Means लेबर कमिश्नर ऑफिस सेंट्रल की होगी, स्टेट की, यूनियन टेरिटरी, जो डिस्प्यूट उनके पास आवे तो उनको साथ में बैठा के सुलझाने का प्रस्ताव करे। उनको कोई प्रेशर नहीं लगा, नहीं आप दे दीजिए 70% 80% पगार, ऐसा नहीं, प्यार से सुलझावे ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को तकलीफ न होवे। Latest updates on writ petition in Supreme Court. As many as 29 writ petitions were listed for hearing on 12th June 2020 before the Supreme Court in respect of the MHA order dated 29th March 2020. The dispute and pair has been done by the petitioners for questioning in respect of the MHA order dated 29th March 2020. MHA order valid till the 25th March 2020 to the 17th May 2054 days, salary to be paid. After that, need not to pay the full salary wages, but to follow the rules and regulation of the labor laws. Financial, जो गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई फाइल किया उसमें क्या बोलते हैं, financial incapacity not a ground to challenge the order, MHA has filed in their affidavit। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवोकेट ने जो रिप्लाई फाइल किया है, उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल जो आपकी कैपेसिटी नहीं है वो आपका कुछ सही ग्राउंड नहीं है चैलेंज करने के लिए। अर्लियर द MHA filed a counter affidavit in the cases defending that March 29 notification financial incapacity cannot be the reason to challenge the notification of MHA। उन्होंने बताया ये ऑर्डर चैलेंज करने, आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, वो आपका ग्राउंड सही नहीं है। Financial incapacity is a legally untenable ground to challenge a direction issued by the competent authority in the exercise of its statutory power, states the MHA's counter affidavit। जो उनके पास जो पावर है MHA के पास, उन्होंने किया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे पास फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है। This was the reply filed by the government advocate। The MHA explained that directions were a temporary, जो डायरेक्शन दिया गया था वो टेम्पररी 54 डेज के लिए था। Measure to mitigate the financial hardship of the employees and workers, especially contractual and casual during the lockdown period। कि जो वर्कर को तकलीफ ना हो, कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर को, कैजुअल वर्कर को तकलीफ ना हो, इसके लिए खाली ये ऑर्डर हमने दिया था। The MHA also informed the court that 29 March 20 notification has ceased to have effect from 18th May 2020। उन्होंने कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को बताया। और जो 29 कंपनी और जिन्होंने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के सामने, उनमें से 18 कंपनी और एसोसिएशन मैंने बताया आपको एक नॉलेज के लिए। फिकस पैक्स है, हैंड टूल्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, एसोसिएशन इज दैट, लाइक दैट दिस आर द 18 कंपनीज एसोसिएशन, दे हैव फाइल्ड केस एवरीवेयर वर्सेस यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया के सामने उन्होंने केस फाइल किया था। MHA order and legal implications. MHA order dated 29th March was issued by the Home Secretary, Ministry of Home Affairs and the Government of India in the excessive power conferred under Section 10(2)(1) of the Disaster Management Act 2005। MHA order is binding upon all concerned। ये order सभी जो गवर्नमेंट करे थे उसको सुपरसीड करके सभी को एप्लीकेबल रहेगा। The Section 10(2)(1) of the Disaster Management 2005 empowers the National Executive Committee to lay down the directions to appropriate government for preparing disaster management plans। MHA order and legal उसका implication क्या है? Section 51 of a Disaster Management Act describes the punishment for any obstruction or non-compliance of such
डायरेक्शन पास अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट 2000 ये MHA ऑर्डर को सामने कोई अगेंस्ट काम किया और उनको कॉम्प्लाई नहीं किया तो इम्प्रिजनमेंट है, जेल की सजा है 1 से 2 साल तक हो सकती है. The said order under the Disaster Management 2005 shall not be set aside until the High Courts of any state or the Supreme Court modifies it or set it aside. ये इनको कोई भी हटा नहीं सकता है अनलेस कोई स्टेट की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकती है, नहीं तो उनको कोई भी हटा नहीं सकता है. 5 steps for implementation of the Supreme Court order dated. हमने जस्ट बताए 5 स्टेप जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को सुलझाने के लिए एम्प्लॉयर के लिए बताए हैं. आप देखिए सब 5 स्टेप्स आते हैं. रेफरेंस ऑफ द केसेस, पहला केस था सुप्रीम कोर्ट Ficus Pax Private Limited and others versus Union of India and the order others writ petition number so and so of guideline for implementation of the order dated 12 June 2020. Before implementation of Supreme Court order, kindly read the paragraph of the aforesaid order, para 33, 34, 35, 36 properly. Abhi, I have prepared the 5 guidelines. Guideline for implementation. ये order को कैसा implement किया जाए, अमल में लाया जाए. फॉर द वर्कमैन, वर्कवेयर के लिए कैटेगरी, तो सेटलमेंट प्रोसीजर फॉर वर्कमैन which falls within the definition of section 2S of the Industrial Dispute Act 1947. फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? The concerned employer must talk directly to their employees, workers union. Depending upon the financial capacity of the establishment, negotiate the payment of wages for above 54 days of the lockdown period and settle this dispute of wages amicably. साथ में बैठ के सेटल करें. यूनियन जरूर लगा तो यूनियन को भी इन्वॉल्व करे. कंपनी में यूनियन होगा तो ये 54 डेज के सैलरी का मामला है. सेकंड स्टेप, if the employer fail to settle the dispute, the central, state, union territory labor authority, that is the assistant commissioner of labor, conciliation officer can also be involved for settlement of wages for above 54 days of the lockdown period and try to settle this dispute of wages amicably before the authority. जरूर लगी तो लेबर कमिश्नर ऑफिस को भी इन्वॉल्व करके लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर लेबर, कंसिलर ऑफिस को इन्वॉल्व करके ये 54 डेज का सैलरी के बारे में सुलझा सके और प्यार से. तीसरा स्टेप, third step, if an settlement is arrived at the first step or second step during the conciliation proceeding, both the stages of negotiation, the settlement member of settlement must be documented in writing as per the prescribed form act. Memorandum of settlement under rule 58 of the Industrial Dispute Act. सभी का signature लेना चाहिए. We have to take the signature of all the employees and workmen. Fourth step, the employer must ensure that memorandum of settlement must be registered and entered in register of settlement form O under the rule 75 of the rules 1957 prescribed state form of the memorandum of settlement, and this procedure can be used by the employer while settlement of wages for above 54 days of the lockdown period. Step fifth, if the settlement is not for settlement नहीं हुआ, एम्प्लॉय से नहीं हुआ, लेबर कमिश्नर के ऑफिस से भी नहीं हुआ, तो नॉट पॉसिबल ड्यू टू द फाइनेंशियल इनकैपेसिटी ऑफ द स्टाफ. कंपनी बोलते हैं मुझे देना है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूं? फॉर एनी रीजनेबल कॉज, देन सच एस्टैब्लिशमेंट मस्ट वेट फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. उनको टिल दैट टाइम नो कोर्सिव एक्शन विल बी टेकन बाय द कंपनी. तो इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट, कंपनी, फैक्ट्री को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा, तब तक राह देखनी है. और गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिस उनके सामने, कंपनी के सामने एक्शन नहीं ले सकेगी. 6 ऑप्शनल है. इफ द एम्प्लॉयर वांट टू सबमिट MOS, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट में सबमिट फॉर द बोनाफाइड रीजन, वो सबमिट कर सकते हैं. गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर डेटेड 20. अभी नॉन वर्कर वन कैसे, जो वर्कर नहीं है उनके लिए, जो सुपरवाइजर है, मैनेजर्स है उनके लिए, the settlement procedure for supervisors and above category other than the workman category. First step, the employer or management can also settle the salary issue for the lockdown period by discussing one-to-one or by sending the email to the employees mentioning the terms and conditions for the payment of salary for the lockdown period. इसमें एक
1 to 1 एक के साथ बात करके कर सकते हैं, उनको मेल भेज के और उनके पास से कंफर्मेशन लेके परसेंटेज ऑफ सैलरी के वेजेस के बारे में बात कर सकते हैं, सुपरवाइजर और मैनेजर और उसके ऊपर की कैटेगरी। सेकंड स्टेप है, the HR professions must take the consent in writing from each employees or take acceptance through email, but these terms and conditions should be documented in writing. ईमेल से कंफर्म लेके बाद में जब भी सुविधा होगी तभी से और राइटिंग में उनके पास से लेना चाहिए। नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द नॉन वर्कमैन, इसके लिए लेबर कमिश्नर के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको जो बताया वो लॉकडाउन पीरियड के बारे में, सैलरी वेजेस देना नहीं देना, कितना देना, कैसा सुलझाना, उसके बारे में आपको बताया है। और सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट ऑर्डर इज अवेटेड, एज सून एज इट विल कम डेफिनेटली आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। नाउ ड्यूरिंग द लॉकडाउन फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट हैज issued 3 schemes. Government of India issued 3 schemes under the Provident Fund to support the stakeholder. Provident Fund के खातेदार को सपोर्ट करने के लिए 3 स्कीम जाहिर की है। क्या कौन सी स्कीम है इसके बारे में हम जानेंगे। Due date for payment of Provident Fund extended due to the COVID-19. The due date for the filling electronic challan cum return ECR for wages month March 20 is extended up to 15th May 2020 for employers who have paid wages to their employees for March. अभी मैंने देखा है, I have seen that so many employers had not paid March salary. मार्च तक पगार अभी तक नहीं दिया है। पॉसिबल होगा तो प्लीज दे दीजिए। और उसके लिए 1 महीना एक्सटेंशन दिया गया था, 15 अप्रैल के बदले 15 मई तक पीएफ का पैसा भरने का था। उसके बाद में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी। Extended time to time applicable to the contribution and administrative charges due for the month of March 2020. There would be no interest and penalty if they remit on or before 15th May 2020 as per the circular reference of 15th April. जो लेट भरेंगे उनका इंटरेस्ट पेनल्टी 15 मई तक नहीं लगेगी, इसके बाद में चालू होगी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। एक था अभी सेकंड, प्रोविडेंट फंड में कोविड-19 पेंडेमिक एडवांस शुरू किया था। इसमें ऐसा था कि आई विल जस्ट शो यू दैट मैक्सिमम लास्ट 3 मंथ सैलरी बेसिक प्लस डीए और whatever amount has accumulated in PF account, employer and employees contribution, 75% of that amount or this whichever is less, that amount has to be paid as a COVID advance. The central government by notification dated 27th March 2020 introduced EPF non-refundable advance from the PF account of the member. PF member can get non-refundable and non-taxable also, please, advance not exceeding the basic wages and nearest allowance of that member for the 3 months or up to the 75% of the amount standing to his credit in the fund, whichever is less. That is a total of basic plus DA for 3 months or 75% of the amount standing in the provident fund, whichever is less, will get to the member as a COVID-19 advance, non-refundable and non-taxable. I have given one case study for this calculation calculation for this COVID-19 pandemic advance. If the total balance in the member's PF account, employer and employee contribution on date is 50,000 and his monthly basic wages is 15,000. 15,000 रुपया पगार और बैलेंस पीएफ में 50,000 है। Therefore 3 महीने का पगार होगा 45,000 and 75% of the 50,000 is 37,500. Then member is eligible to get advance of 37,500. Maximum 37,500 he can take. Suppose he want lesser, suppose उनको कम पैसा चाहिए, मुझे 37,500 नहीं चाहिए, मुझे 20,000 की जरूरत है, 25 की या 30 की है, तो कम अमाउंट ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 37,500 रुपीज आपको मिल सकता है स्टेक होल्डर को, और ये क्लेम विदिन 72 आवर्स में सेटल हो रहे हैं। 3 दिन के अंदर पीएफ डिपार्टमेंट इतना फास्ट क्लेम सेटल कर रहा है
to support the COVID-19 pandemic advance. Within 72 hours, आज भी वो claim more than 1000 crore already उन्होंने settle कर दिए हैं rupees के claim. उसके लिए सिंपल प्रोसीजर है, क्या करना है, पहले भी तो फाइल द ऑनलाइन करना है, सिंपल है, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो स्टेक होल्डर है उनको मालूम होगा, अकाउंट नंबर एक्टिव करना है, सबका वेरीफाइड आधार यूएन के साथ में रहेगा, बैंक डिटेल IFSC सबके पास रहता है, बैंक के ऊपर, बैंक के चेकबुक के ऊपर लिखा रहता है, शुड बी सीडेड विद यूएन नंबर, मोबाइल नंबर शुड बी सीडेड विद यूएन नंबर, मोबाइल नंबर शुड बी लिंक विद द आधार फॉर द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, एंड इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म नंबर 31 ऑनलाइन भरना है. सेकंड स्कीम सरकार ने रिलीज की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंडर द प्रोविडेंट फंड. द स्कीम विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम द मंथ ऑफ एजिस मार्च 2020, अप्रैल 2020 एंड मई. फर्स्ट 3 महीने के लिए उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी, बाद में फिर से और 3 मंथ उन्होंने एक्सटेंड किया है, जून, जुलाई एंड अगस्त सैलरी, तो 6 महीने मार्च से अगस्त तक. ये स्कीम में ऐसा है कि कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री में पूरे भारतवर्ष में 100 से कम एम्प्लॉय होंगे, वर्कर होंगे, 100 इससे कम होंगे. और सेकंड कंडीशन है, जो एम्प्लॉय होंगे उसमें से 90% एम्प्लॉयज वर्कर का पगार ग्रॉस सैलरी 15,000 से कम, 15,000 मीन्स मैक्सिमम 14,999 रहेगा, 90% और उससे ज्यादा, तो वो कंपनी को ये स्कीम का फायदा होगा. फायदा क्या है, ये 6 महीने के लिए कम जो पगार का 12% कट होता है, वो 12% एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन 12%, दोनों 12 + 12 24% कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस 6 months, March to August. A scheme to implement the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana package for the credit of employees and employer shares of PPF and EPS contribution 24%, 12 + 12, 12 + 12, 12 employees का 12 company का, for 3 months by the government of India and later on extend for further 3 months. The government of India on 26 March 2020 announced rupees 1.70 lakhs crore relief package under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against the coronavirus pandemic. As part of the said package, the central government proposed to pay 24% of the monthly wages into EPF or Employees Provident Fund account for the 6 months of wages earners below rupees 15,000 per month, जिसका पगार 15,000 से कम है, that is 14,999, who are employed in establishment having up to 100 employees, जो कंपनी में पूरे भारत में 100 से कम एम्प्लॉइज होंगे, with 90, उनमें से 90% of employees worker or more, such employees earning monthly wages is less than 15,000. 90% और उससे ज्यादा एम्प्लॉइज का पगार 15,000 से 15,000 से कम, 15 नहीं 14,999 से कम होगा, तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा. सरकार ने तीसरा बेनिफिट डिक्लेयर किया है, PF contribution rate. PF contribution, if you are having 20 or more employees, then it is at 12%, 12% है बेसिक प्लस DA का. तो ये 3 महीने के लिए मई का पगार, मई, जून एंड जुलाई का पगार, मई, जून, जुलाई का पगार जो 12% होता है, इसके बदले एम्प्लॉइज का पगार, वर्कर का पगार 10% काटा जाएगा और कंपनी का भी 10%. तो गवर्नमेंट का कहना है कि 2% ज्यादा एम्प्लॉइज घर में ले सकते हैं और कंपनी भी 2% बचा सकती है, ताकि उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट रहे. The reduced rate of 10% of provident contribution is applicable for the salary for the month of May, June and July 2020. In case कोई एम्प्लॉय और वर्कर सब एग्री होंगे कि नहीं हमें 12% ही कटाने हैं ये 3 महीने के लिए, और एम्प्लॉयर एग्री होगा, तो एम्प्लॉयर को, कंपनी को सभी एम्प्लॉय का राइटिंग में लेना पड़ेगा कि हमारे पगार में से आप 12% करो. 100% एम्प्लॉय और वर्कमैन हैज टू एग्री, देन ओनली दिस विल बी पॉसिबल. In case an organization claiming benefit under the PMGKY, then such organization cannot claim the
10% बेनिफिट। PMJKY में 24 टोटल कंट्रीब्यूशन 24% गवर्नमेंट देती है, इसके लिए उनको ये स्कीम लागू नहीं होगी। इसका जो नोटिफिकेशन निकाला था वो ये है, वो मैंने मेरी नोट्स में आपको दिया है। जो मैंने बताया हुई EPF स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन खाली 12 का 10% जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिट होगी उनको लागू नहीं होगा, उनको 12% ही भरना पड़ेगा। The last para, the revised rate of the EPF contribution announced by the central government under आत्मनिर्भर भारत पैकेज है। ये जो स्कीम है 2% कम वाली आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, वाइड नोटिफिकेशन ऑफ 18 मई 2020। लेटेस्ट अपडेट, फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस ऑन 13 मई, उन्होंने जो अनाउंस किया था 2500 करोड़ CPF सपोर्ट, प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट सपोर्ट फॉर द बिजनेस, जो 2% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 12% था तो 24% बचेगा। तो इसके बारे में उन्होंने मेंशन किया, लास्ट पैरा में पढ़ता हूँ अभी। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी रिलीफ ऑफ 2500 करोड़ to 3.67 lakhs establishment and for 72.22 lakhs employers, जो 12% का फायदा होगा इसके बारे में। एंड जो 12 से 10% किया गया 3 महीने के लिए, तो इसमें भी लास्ट पैरा देखेंगे, लास्ट 2 पैरा, जो 2% बचा कितना फायदा होगा एम्प्लॉइज को और कंपनी को। दिस विल प्रोवाइड रिलीफ टू अबाउट 6.5 lakhs एस्टेब्लिशमेंट covered under the EPFO and about 4.3 crore such employees. This will provide liquidity of 6750 crores to employers and employees over 3 months. इतना फायदा 6750 करोड़ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन कम जाएगा प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में। जो पेंडेमिक के लिए जो मैंने बताया था उसके लिए ये क्या करना है, तो ये उनको UN नंबर एक्टिव करना है, वेरीफाइड आधार बैंक के साथ लिंक करना है, एक्सक्यूज मी। तो ये भी मैंने आपको बताया है और उसका एलिजिबिलिटी भी मैंने बताया, 75% ऑफ बैलेंस अमाउंट और 3 मंथ सैलरी। मैंने मेरा स्टडी मटेरियल में ये सब कुछ आपको दिया है ताकि आपके पास रह सके और आप पढ़ सके। फ्रेंड्स, ये था गवर्नमेंट ने जो 3 स्कीम डिक्लेयर की थी प्रोविडेंट फंड की टू सपोर्ट द स्टेक होल्डर। अभी बहुत बड़ा एक्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ESI एक्ट। इसके सबसे बड़ा इसमें है जो एम्प्लॉय जो वर्कर ESI में कवर्ड है, they are automatically covered in the COVID-19 disease covered under ESI एक्ट। उनको और उनको परिवार जिनका नाम जो ESI कार्ड में उनके मालिक करे किसको भी कोविड ना होवे तो टोटल खर्चा, टोटल फैसिलिटी, टोटल मेडिसिन, टोटल हॉस्पिटलाइजेशन विल बी बोर्न बाय द ESI डिपार्टमेंट। तो COVID-19 इज कवर्ड अंडर ESI। जो एम्प्लॉइज आपका कवर्ड है उनको टोटल बेनिफिट ESI एक्ट में मिलेगा, एम्प्लॉयर को कोई भी खर्चा करने का जरूरत नहीं रहेगी। ESI स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार का? टू सिक्योर sickness, maternity, disablement and medical benefit, to provide funeral expenses. Those employees who are covered under ESI, they are covered by 24/7. Suppose anything will happen to that employee, he is at home, if he expire night time, then also ESI department will pay 15,000 rupees, 15,000 रुपये उनके परिवार को अंतिम क्रिया के लिए दिया जाएगा। There will not be any inquiry, nothing, no need of any documentation, only death certificate, and to provide the benefit for the dependent in case of the accident and all. So I always tell my participant, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एक स्लोगन है, जो फर्स्ट पैरा है, फर्स्ट लाइन है, सिक्योर बेनिफिट, जिंदगी के साथ भी है, एंड सेकंड एंड थर्ड है जिंदगी के बाद भी। तो जिंदगी के साथ भी एंड जिंदगी के बाद भी ESI टेक द डबल केयर। जब पर्सन इज अलाइव तो फर्स्ट है, पर्सन इज नॉट अलाइव सेकंड एंड थर्ड।
तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है, ईएसआई टोटली एप्लीकेबल, ईएसआई को सेम सुटेबल हो रहा है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर ईएसआई स्कीम। सी मैंने देखा है बहुत लोग को मालूम भी नहीं है कि ईएसआई में इतने सारे ढेर से बेनिफिट है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स है, लोगों को मालूम भी नहीं है कि इतने बेनिफिट्स है। डिपार्टमेंट में बहुत ऑफिसर इंस्पेक्टर आते हैं वो भी नहीं बताते हैं, और कोई कंसल्टेंट मेरे फ्रेंड जैसे, मेरे फ्रेंड कंसल्टेंट है, एचआर वाले को भी मालूम नहीं रहता है, ऐसी मैं जानता हूँ। द स्कीम प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट, 10 बेनिफिट है। मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, टेम्पररी डिसेबल बेनिफिट, परमानेंट डिसेबल बेनिफिट और डिसीज एंड ओल्ड एज है। आईपी मींस इंश्योर्ड पर्सन जो ईएसआई में कवर्ड है। डिपेंडेंट बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, मेडिकल बेनिफिट इन ओल्ड एज, unemployment benefit, unemployment allowance and physical disability that I will explain you. फ्रेंड ये कानून किसको एप्लीकेबल है? ऑल फैक्ट्री, जो भी फैक्ट्री है उन सबको है। कम से कम 10 एम्प्लॉय चाहिए, वेयर दे आर रन बाय पावर और विदाउट, कोई पण मैन्युफैक्चरिंग पावर विदाउट पावर। विदाउट पावर का मीनिंग है, सपोज अपने घर में कैंची रहती है ना, सीजर, एक पेपर लिया मैंने, इसको काट के हाथ से कैंची से और उसको फ्लावर बनाया, मार्केट में 5-5 रुपए में बेचता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी विदाउट पावर, कैंची से। तो भी 10 एम्प्लॉय होंगे तो ये कानून एप्लीकेबल होगा। नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट बाय गवर्नमेंट, शॉप एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन ओनली इन केस ऑफ महाराष्ट्र, इन अदर केसेस 10 एम्प्लॉय। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट में, पूरे महाराष्ट्र में इन केस ऑफ ऑफिस होगी कि खाली दुकान होगी, फैक्ट्री नहीं होगी, इफ यू आर हैविंग शॉप और ऑफिस, देन मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर है 20 और 20 कवरेबल एम्प्लॉय। कवरेबल एम्प्लॉइज रहने का मीनिंग है 20 जन का पगार 21,000, 20 जो लिमिट है ईएसआई की 21,000, 21,000 और उससे कम होगा तो ही एप्लीकेबल रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बट अदर देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्यों? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बताया कि आप ईएसआई का जो मेडिकल फैसिलिटी है इंप्रूव करो, देन ओनली वी विल एग्री फॉर द 10। और पूरे भारतवर्ष में बाकी सभी राज्यों में उन्होंने नोटिफिकेशन लाया राज्य ने, और वेदर इट इज ऑफिस, वेदर इट इज ए शॉप और वेदर इट इज ए फैक्ट्री, 10 एम्प्लॉय होंगे तो भी ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है। और जिसका पगार 21 और उससे कम होगा, 21,000 के उसके कम, वो सभी ईएसआई में कवर हो जाएंगे। और 21,000 क्या है? 21,000 इंक्लूड और कंपोनेंट्स, बेसिक, डीए, एचआरए, फूड अलाउंस, जो भी अलाउंस बोले हैं, कन्वेंस, सब कुछ इंक्लूड है, एक्सेप्ट वॉशिंग अलाउंस इफ मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग क्लॉथ, कपड़ा देती है कंपनी, और नहीं होगा तो रेडीमेड कपड़ा देती है, स्टिचिंग चार्जेस देती है, और उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होगी। तो वॉशिंग अलाउंस जो बताया कंपोनेंट मे बी 200, 300, 400, उसके ऊपर खाली ईएसआई एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सभी जो कंपोनेंट है उसके ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल रहेगा। एंड सैलरी वेज लिमिट इज 21,000 एक्सक्लूडिंग ओटी, ओटी को माइनस करके 21,000 रहेगा, तो उनको ईएसआई एप्लीकेबल है। States such as Arunachal Pradesh and Lakshadweep are excluded, वहाँ ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। उनका रीजन ये है कि ये राज्यों में अभी तक ईएसआई की हॉस्पिटल शुरू नहीं हुई है, आने वाले 6-8 महीने में ईएसआई हॉस्पिटल शुरू हो जाएगी तो वहाँ भी ईएसआई शुरू हो जाएगा। सो प्लीज रिमेम्बर 10 एम्प्लॉय और मोर, मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र में 20, अदर स्टेट 10। सपोज पार्टनर है और सैलरी ले रहे हैं 21,000 से कम, 10,000, 12,000, 15, तो उनको ईएसआई एप्लीकेबल नहीं है। पार्टनर्स आर नॉट एम्प्लॉय अंडर द ईएसआई, तो पार्टनर्स आर नॉट कवर्ड। सिमिलरली रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिंपल प्रोसीजर, श्रम सुविधा पोर्टल में रजिस्टर करना है, आधा घंटे में आपको नंबर मिल जाता है। तो 17 डिजिट उसको कोड नंबर मिला जाता है, कोड नंबर। इनकम टैक्स में आपके हमारे पास पैन कार्ड है, वो पैन ईयर कोड नंबर दिया जाए, कोड नंबर एक ही रहता है, सब कोड नंबर डिफरेंट है। सपोज मेन कोड नंबर मुंबई में लिया और सब कोड नंबर पूरे भारतवर्ष में, सपोज दे आर हैविंग नंबर ऑफ ब्रांचेस, कोई कंपनी की ब्रांचेस रहेंगे, गोडाउन रहेंगे, तो एवरीवेयर वी हैव टू टेक सब कोड नंबर, क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट के लिए। सो कोड नंबर इज वन, दैट इज अ फादर
फादर एक रहते हैं, पिता एक रहते हैं, मगर उनके बच्चे 2, 4, 6, 8 रहते हैं, तो सब कोड नंबर में भी वेरियस, बट कोड नंबर विल बी वन। उनको क्यों लेना चाहिए कि बिकॉज सपोज मेन कोड नंबर मुंबई में लिया, कोई सेल्समैन, 2-3 सेल्समैन दिल्ली में काम करते हैं, वो बीमार हुए, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उनको बेनिफिट मिलने के लिए वहाँ बेनिफिट मिलेगा, बाद में रिकवर हो जाएंगे, तो कैश बेनिफिट है, तो कैश बेनिफिट दिल्ली में से ले सके, नहीं तो नहीं लिया होगा तो सब दिल्ली से पेपर मुंबई भेजना पड़ेगा, और मुंबई से वो क्लार्क बोलेगा इधर सिग्नेचर नहीं है, बरोबर नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इट इज वेरी मच एडवाइजेबल कि आपका डिफरेंट लोकेशन होएगा, तो आप प्लीज अप्लाई फॉर द सब कोड नंबर। सिंपल प्रोसीजर है, 10 मिनट में काम हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा पैसा भरना नहीं है। लेटेस्ट अपडेट ऑन द ESI रिगार्डिंग एम्प्लॉइज रजिस्ट्रेशन। कोई भी नया एम्प्लॉय, कोई भी नया वर्कर आपके साथ ज्वाइन हो आपकी कंपनी में, तो 10 दिन के अंदर उसका नंबर जनरेट, इंश्योरेंस नंबर जनरेट करना चाहिए। आप उसको पूछना चाहिए आपका इंश्योरेंस नंबर है, तो वही नंबर चालू रहेगा, नहीं होगा तो आपको 10 दिन के अंदर जनरेट करना पड़ेगा। 10 दिन से ज्यादा हुआ तो देयर इज ए लेंथी प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो। कंट्रीब्यूशन का रेट है, क्या कंट्रीब्यूशन क्या भरने का है, कंपनी को, एम्प्लॉयर को 3.25% ऑफ ग्रॉस वेजेस, और एम्प्लॉइज को, वर्कर को ओनली 0.75% ऑफ द वेजेस। एक्सक्लूजन है एम्प्लॉइज हुज डेली वेजेस आर 176 रुपीज, जिसका पगार एक दिन का 176 और उससे कम है, महीने का पगार 4000 होएगा कुछ, तो दे आर कॉल्ड एज ए लो वेज अर्नर, छोटे पगार वाले, उनको लिए ESI स्कीम टोटली फ्री है। ओनली उनको टोटल बेनिफिट मिलेगा, खाली कंपनी को उनका कंट्रीब्यूशन भरने का 3.25, और दीज पीपल डू नॉट हैव टू पे एनी कंट्रीब्यूशन बिकॉज दे आर लो वेज अर्नर। जो पैसा ESI का पैसा 15 तारीख तक भरना चाहिए, पिछले महीने की, ये अमेंडमेंट आया 1 जुलाई 2017। लेट पेमेंट यू हैव टू पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, 15 तारीख के बाद भरेंगे तो यू हैव टू पे 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम प्लस पेनल्टी, उनका लैंग्वेज में डैमेजेस बोलते हैं, इफ डिले इज अप टू 2 months देन 5% पर एनम, 2 to 4 month डिले 10% per annum, 4 to 6 month delay 15% per annum, more than 6 month delay of the payment, then 25% per annum they have to pay to the ESI plus 12% simple interest. ESI challan has to be paid online. Employees entitled for the coverage, किसको मिलेगा? An employee whose wages excluding OT exceed 21,000 per month at any time after the beginning of the contribution period shall continue to be covered until the end of the contribution period. There are 2 contribution period है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1 April to 30 September एक contribution करे, second contribution 1 October 31st। कोई एम्प्लॉय 1 April को आया, उसका पगार 20,000 है, तो ESI एप्लीकेबल होगा। आफ्टर 2 months उसका पगार 25,000 किया गया, मैनेजमेंट ने पगार बढ़ा दिया, तो भी उसका 25,000 के ऊपर ESI कटेगा टिल द कंप्लीशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन पीरियड। वो कंट्रीब्यूशन पीरियड 30 सितंबर को खत्म होगा, तो 30 सितंबर तक उनको ESI का कंट्रीब्यूशन 25,000 के ऊपर भरना पड़ेगा, और उसको बेनिफिट भी 25,000 के ऊपर मिलेगा। आफ्टर सितंबर जो इसका पगार 25,000 चालू रहेगा, तो अक्टूबर में से उसका ESI में से आउट होएगा, और उसका ESI का कंट्रीब्यूशन काटना बंद हो जाएगा। बेनिफिट टू द एम्प्लॉयर, जो कंपनी ESI में कवर्ड है उनको क्या बेनिफिट है? कवर्ड ये एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी। जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो ESI डिपार्टमेंट देगी, कंपनी को नहीं देने का है, जिसका जो ESI में हमारे बहने माताएं कवर्ड है। एम्प्लॉयर्स कॉम्पनसेशन एक्ट, कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो ESI विल टेक केयर, whose monthly salary wages up to 21,000 excluding OT, because ESI had covered the wider benefits. ESI में कितने लोग कवर्ड है, कौन कौन? सपोज कोई कामगार भाई के बहन काम करते हैं, उनके साथ कौन कौन कवर्ड है? पूरा परिवार कवर्ड है। जस्ट लाइक मेडिक्लेम हम इंश्योरेंस लेंगे तो फैमिली फ्लोटर कैसा है, तो ESI में टोटल फैमिली कवर्ड है, ओनली 0.75 नया पैसा कॉन्ट्रीब्यूशन भर के। कौन कौन जो एम्प्लॉय है उसके साथ में कौन कवर्ड है? स्पाउस, उसके पति की पत्नी,
A minor legitimate or adopted child depend upon the IP. IP means insured person, जो कंपनी में काम करते हैं, जिसको पगार मिलता है, उसमें से उसका contribution जाता है, is called as insured person IP. Son up to the age of 25 years, dependent son. Unmarried daughter. Suppose daughter says, Papa, she may be 25, 30, 40, say, Papa, I don't want to get married. मुझे शादी नहीं करना है, आपके साथ रहना है. तो till she get married, शादी हो गया, तब तक वो covered है. A child is informed by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependent on the earning of the IP insured person. तो वो भी जब तक जिंदा रहेगा तब तक कवर्ड है, बिकॉज मेंटल फिजिकली इन्फॉर्म है इसके लिए. एंड मम्मी एंड पापा, डिपेंडेंट पेरेंट्स, माता पिता, जिनकी इनकम, मम्मी की इनकम, माता की इनकम पर महीने पर मंथ 9,000 की उससे कम होनी चाहिए, पापा की इनकम 9,000 की उससे कम होगा, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा. सी देखिए, टोटल फैमिली इज कवर्ड बाय पेइंग ओनली 0.75 पैसे. तो सी दिस इज अ वेरी गुड स्कीम. प्लीज जिसको भी एप्लीकेबल होगा, प्लीज उसका बेनिफिट आप दिलाइए. फ्रेंड, देयर आर 10 बेनिफिट अंडर द ESI स्कीम. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. सॉरी. फर्स्ट बेनिफिट इज ए मेडिकल बेनिफिट. Day one, पहले दिन से that employee joins, from that day he is covered under he and his family are covered under the medical benefit. पहले दिन से उनको, उनके परिवार को medical benefit मिलेगा from ESI doctor और ESI hospital. Second benefit is sickness benefit. This is applicable to the employee जो काम करते हैं उनके लिए है ये. इसमें cash benefit with vitamin M is involved. Suppose कोई भी employee join हुआ और उनने minimum 9 महीना काम किया और 9 महीने के बाद में वो बीमार हुआ, तो 2 से ज्यादा दिन बीमार हुआ तो उसको 70% सैलरी दी जाती है. पहले सपोज 1 तारीख को बीमार हुआ तो डॉक्टर उसको सिकनेस सर्टिफिकेट देगा, 12 तारीख को रिकवर हुआ तो फिटनेस सर्टिफिकेट, 12 दिन का बीमारी, तो फर्स्ट एंड लास्ट डे गिना नहीं जाता है. 12 minus 2, 10 days, 70% सैलरी will be given by ESI department. ESI department को पगार देगा. कंपनी को पगार कुछ भी नहीं देने का है, सिक लीव भी नहीं देने का है. इफ कंपनी देती होगी तो ESIC में से नहीं लेना चाहिए. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज दैट one cannot make profit from the insurance. Under ESI, bypass is covered, brain tumor, knee replacement, कोई भी बीमारी कवर्ड है. There is no limit. आप और मैं मेडिक्लेम लेंगे, 2 लाख 4 लाख का लेंगे, 4 लाख पूरा हुआ तो बोलेंगे साहब आपका लिमिट खत्म. Here there is no limit खत्म. And this is for employee up to 730 days का पगार भी मिल सकता है एम्प्लॉय को सिकनेस बेनिफिट में. One of the best benefit is maternity benefit. कोई भी बहनें और माताएं काम करती है और कम से कम उन्होंने 9 महीना काम किया है, 9 महीने में 70 डेज अटेंड किया होगा और उसका कंट्रीब्यूशन भरा होगा, तो उनको 26 वीक तब का फुल पगार नो परसेंटेज ESI डिपार्टमेंट देगी. आफ्टर 26 वीक सपोज जो बहनें माताएं फिट नहीं रहेगी, डॉक्टर सर्टिफाई देगा कि मैडम इज नॉट फिट टू रिज्यूम नॉर्मलिटी, तो एडी अप टू मे बी 5 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 1 महीने तक का एडिशनल पगार भी मिलेगा. तो 7 महीने का पगार 7 मंथ सैलरी मिल सकती है. और ESI हॉस्पिटल में फ्री डिलीवरी हो सकती है. और कोई भी मेल एम्प्लॉय होगा, मेल वर्कर होगा, उनकी वाइफ हाउसवाइफ होगी और इनकेस प्रेग्नेंट होगी तो उनको भी ESI में फ्री डिलीवरी, ESI हॉस्पिटल में फ्री डिलीवरी मिलेगी. कोई भी खर्चा ESI हॉस्पिटल में नहीं लगेगा. टेम्पररी डिसेबलमेंट, कोई एम्प्लॉय ऑफिस काम के लिए बाहर गया और उसको कुछ लग गया और कुछ डिसेबिलिटी हो गई टेम्पररी, तो जब तक रिकवर होएगा इतने दिन का 90% पगार उनको मिलते जाएगा. जब तक रिकवर फिट नहीं होगा तब तक 90% पगार ESI डिपार्टमेंट उनको देगी. परमानेंट डिसेबलमेंट, सपोज कोई एम्प्लॉय को ड्यूटी आवर्स में बाहर भेजा और कि इनकेस फैक्ट्री में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर कट गया, कुछ डिसेबिलिटी हो गई, तो in that case परमानेंट पेंशन मिलेगा. सपोज कोई एम्प्लॉय का हाथ कट गया तो डिपेंड अपॉन आपने जब भी रिकवर हुआ तब से और
उनको 90% पगार मिलेगा। बाद में ईएसआई मेडिकल डॉक्टर की टीम वेरीफाई करेगी कि हाउ मच वर्किंग एंड अर्निंग कैपेसिटी इज लॉस्ट। देन जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, लाइफ टाइम। वो भी बहुत बड़ी बात है, लाइफ टाइम पेंशन। वेदर नौकरी करे नहीं करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, तो भी हर महीने के लास्ट तारीख तक उसके अकाउंट में पेंशन अमाउंट जमा हो जाएगी। खाली वंस इन अ ईयर he has to appear before ESI authority में, that is a survival certificate, मैं जिंदा हूँ ऐसा बताना चाहिए। और उसके लिए भी आने जाने का 100 रुपीज ट्रैवलिंग अलाउंस भी ESI डिपार्टमेंट देती है। डिपेंडेंट बेनिफिट, सपोज कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कमैन ऑफ ड्यूटी पे रहेगा और उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सपायर हो गया, तो इन डेथ केस उसके फैमिली मेंबर को 90% पगार पेंशन में मिलेगा। सपोज कोई वर्कमैन है, उसका पगार 20,000 है और एक्सीडेंट से ड्यूटी आवर्स में एक्सपायर हो गया, तो उसके परिवार को, उसकी वाइफ और बच्चे को 90% सैलरी, 20,000 का 90%, 18,000 रुपया पेंशन पर मंथ, एवरी मंथ 18,000 रुपया पेंशन मिलेगा। इसमें 60% वाइफ का रहता है, 40% बच्चे लोग का रहता है। सपोज 60 वाइफ ने फिर से शादी कर दी तो उसका 60% कट जाएगा, तो 40% बच्चे का चालू रहेगा। और इनकेस कोई बहन की माता जो कंपनी में काम कर रही है, मैरिड है, उनका शादी हो गई है और ड्यूटी आवर्स में उनका एक्सीडेंट हो गया और बहन की माता एक्सपायर्ड हो गई, तो सॉरी टू से उनके हस्बैंड को, उनके पति को 1 भी रुपया पेंशन नहीं मिलेगा। खाली बच्चे लोग को 40% पेंशन मिलेगा। नहीं तो हस्बैंड बोलेगा चलो अच्छे दिन आ गए, ऐसा नहीं है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जो भी एम्प्लॉय, जो भी he is covered under ESI for funeral 24/7, 24 घंटे में कभी भी उसको कुछ भी हुआ, डेथ हुआ, तो 15,000 रुपया उसके परिवार को फ्यूनरल एक्सपेंस, अंतिम क्रिया के लिए दिया जाएगा। उसकी कोई भी इंक्वायरी नहीं, कोई भी बिल भी नहीं लगेगा, खाली डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। और जो नॉमिनी की एल्डरली सर्वाइविंग मेंबर, उनको फॉर्म नंबर 22 भरना है, सिंगल फॉर्म है। उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक देना है और डेथ सर्टिफिकेट और कंपनी का सिग्नेचर लेना है। 15,000 रुपया मिलेगा। मेडिकल बेनिफिट टू द रिटायर्ड एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय काम करता है, रिटायरमेंट तक, जो दिन रिटायरमेंट आया और अर्ली रिटायरमेंट VRS हुआ और उसके पहला कम से कम 5 साल का कंट्रीब्यूशन भरा होगा ESI का, 5 years का कंट्रीब्यूशन। तो केस स्टडी नंबर 2, कोई भी भाई की बहन फैक्ट्री में, कंपनी में काम करती है, वर्किंग आवर्स में उनका एक्सीडेंट हो गया और 40% से ज्यादा फिजिकली इनकेपेबल हो गया, तो वो भाई को की बहन को अप टू द एज ऑफ 58 ऑन, उनको 58 साल तक। बट जो रिटायर एम्प्लॉय है उनको जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये दोनों को खाली जस्ट टू पे 120 रुपीज, 120 रुपया प्रीमियम, हस्बैंड एंड वाइफ का फुल मेडिक्लेम इंश्योरेंस, 120 रुपये में फुल मेडिक्लेम इंश्योरेंस, 60 रुपीज फॉर वाइफ, 60 फॉर हस्बैंड, पूरा ESI का बेनिफिट पूरे साल के लिए। तो हर साल सिर्फ 120 रुपया भरने का और फुल मेडिक्लेम इंश्योरेंस। आजकल हम लोग 60 साल के ऊपर उम्र हुई और 1 लाख का मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेने को जाएंगे तो उसका प्रीमियम है 8,000 से ज्यादा प्लस GST, 8,000 प्लस GST। तो हियर 120 रुपया। हस्बैंड और वाइफ कोई भी एक्सपायर हो गए तो भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन इज 120 ओनली। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, बेकारी भत्ता, कोई भी भाई की बहन कंपनी में के फैक्ट्री में के ऑफिस में काम करता है, कोई कंपनी परमानेंटली बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई एक, और कोई भाई की बहन को नौकरी में से निकाल दिया गया, रिटेंच कर दिया गया, पर उन्होंने कम से कम 2 साल का ESI का कंट्रीब्यूशन भरा होगा, मिनिमम 2, तो उनको लास्ट 2 years एवरेज सैलरी होगी उसका 50%। सपोज लास्ट 2 year एवरेज सैलरी इज 10,000 रुपीज, तो उसका 50% 5,000 रुपीज होता है। 5,000 रुपया पहले साल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा, बेकारी भत्ता मिलेगा। सपोज 1 साल में नौकरी नहीं मिली तो सेकंड ईयर 25% ऑफ 10,000, 2,500 रुपया बेकारी भत्ता मिलेगा। इन बिटवीन इफ यू गेट द जॉब, इन बिटवीन उसे नौकरी मिल गई
तो उनको ईएसआई को बताना पड़ेगा थैंक यू ईएसआई, मुझे नौकरी मिल गई। ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। बेनिफिट टू द फिजिकली डिसेबल, जो फिजिकली डिसेबल है, जिसको 40% से ज्यादा फिजिकली डिसेबिलिटी है, उनके लिए जिस जस्ट उनको नौकरी मिले, इसके लिए दे उनका सैलरी का लिमिट 21,000 नहीं 25,000 तक का पगार रहेगा। उनको ईएसआई का बेनिफिट मिलेगा। प्रोविडेंट फंड में भी लिमिट 25,000 है फिजिकली डिसेबल एम्प्लॉइज को, और इनमें दे हैव टू पे द कंट्रीब्यूशन 0.75, बट कंपनीज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है 3.25% विल बी पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार पैसा भरेगी 3 साल के लिए। दिस इज जस्ट टू सपोर्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फिजिकली डिसेबल एम्प्लॉइज। जस्ट आपके नॉलेज। Ramesh bhai, we are going to run out of time because Zoom will just disconnect. So, any question? Yeah. So because we have to go through the question answer session also over here. Sure, sir. So, Ramesh bhai, yes, sir. I would, before we get into question answer, I have already read the question answer. So, most of the people have one common question. Sir. That yes, sir. People who have not worked in this lockdown time. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Can we deduct their salary? Yeah. A lot of people are asking this question. No, can we deduct their salary? So can we? Yeah, please, sir. Please continue, sir. The better है कि आप वही समझा दो कि सैलरी हम जो ये लॉकडाउन के टाइम में आदमी काम पे नहीं आ रहा है, तो हमको उसको सैलरी देने की जरूरत है या नहीं है, अगर है तो कितनी है? देखो माय फ्रेंड्स, एज ऑफ टुडे मार्च अप्रैल में वो गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का आया नोटिस, फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में हुआ 54 डेज, इसके बाद की बात है, बरोबर है? हाँ इसके फ्रॉम 18th में, राइट सर संगानी सर? 18 मई से, बरोबर? या इसमें आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन, यस, पहला लॉकडाउन 18 मई को खुला। हाँ या तो इसमें प्लीज माय फ्रेंड जस्ट लिसन, उसमें इसके बारे में ऐसा है कि फ्रॉम 18th मई अभी there are different things are there. Suppose your company is falling under the essential service में होएगा, और suppose you are providing that employees worker to and fro, coming and going from residence to office, as well as the there where they are staying, that area should not be the COVID affected area, and आपकी ऑफिस की फैक्ट्री में you maintaining the COVID का जो भी norms है, and even though any employee or workman is not coming, then you should not pay the salary. This is for the those employees who are essential services. Essential service में उनको सब चांस दिया गया है तो भी नहीं आते। We are talking about our trade. हमारा gem and jewelry trade essential नहीं है सर। हमारा gem and jewelry trade में if people are not coming to work after 18th May, are we supposed to pay them the salary? Yes or no? Yeah, I'm replying that. Thank you, sir. Thank you. In this case, I want to tell you, friends. Yeah, आप right है sir. Suppose आपकी ऑफिस के फैक्ट्री चालू हो गई, and you have to intimate to the concerned employee जो आपके यहाँ काम करते हैं उनको, सपोज जो ईमेल रीड्स कर सकते हैं उनको आप मेल में रिप्लाई भेजिए, अपने ऑफिस अपनी फैक्ट्री शुरू हो गई है तारीख से, सो वी आर रिक्वेस्टिंग यू काइंडली रिज्यूम फॉर द ड्यूटी। इसमें सर संगानी सर और भी ये भी आ सकता है, कल बोलेंगे मैं कर्जत रहता हूँ, ट्रेन बंद है, ऐसा भी हो सकता है। सी दिस इज आई एम हैविंग दैट नंबर ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन। दिस इज हाउ कैन आई कम, आप मुझे आने जाने का गाड़ी भाड़ा देंगे? मैं ओला उबर में आऊंगा तो आप देंगे? So this is that. So first you have to see whether these employees are staying nearby your office, nearby your factory, where workplace walkable distance, where their bus services are possible. You just see that, and accordingly you can analyze. बराबर है, जो आ सकता है वो आ जाएगा, जो नहीं आ सकता है उसको मेरे को पगार देने का जरूरी है। इसमें again I am telling you, please sit with that concerned employee workman and negotiate. बट सर वो आता ही नहीं है तो कहाँ से बैठेंगे उसके साथ, वो आ ही नहीं सकता है। सर मैं आई एम गिविंग माय अनबायस्ड ओपिनियन सर, मैंने ऐसे 50 सेमिनार किया है ऐसे वेबिनार, तो इसमें सब मैं बोलूंगा, मैं विरार रहता हूँ सर, टेक इट इजी है, आई एम स्टेइंग इन विरार,
मुझे आपके यहाँ काम पे आना है सर, प्लीज मेरे लिए विरार से गाड़ी का कुछ अरेंजमेंट करिए ना. Whether it is, I have seen my clients are there. I am telling you, I don't want to name. They have arranged from Virar to Andheri. Vehicle they have arranged. So wherever this type of facility we are providing, and suppose see here that is left to your discussion. And suppose some employees, workmen staying nearby our office, nearby our factory, वो बोलेंगे नहीं मेरी वाइफ ना बोलती है, मेरे पति ना बोलते हैं because COVID है. So in that case, if they are, we know that because we know their address nearby, 5, 10, 15 minute walkable, उनके घर के बाजू में बस है, and when they are not coming and giving the intimation, then surely you can deduct their salary. And those person who would like to come but due to this of convenience not coming, then in that case my personal opinion, you can negotiate and consider whatever best possible financially from your end. Yes, Sanvi sir. Yes, understood, sir. Understood very well. This is an unbiased opinion. Yes, sir. Yes, I understand what you are saying. And now, so the next question is this: that first, yes, I can deduct their salary if they are not coming to work. Now, Right. sir, first, the government of India, as far as gem and jewelry trade was concerned, specifically for exporters, they allowed us to start our factories much earlier than the remaining people, and they Right, allowed right. us to carry 10% employees. Perfect, perfect. And you Right, sir, maintain right. social distancing, everything. Right. And eventually, after a month or so, they allowed us to carry 25% employment. Right, sir. 30%. 25%, sir. Okay, sir. Okay, so then what happens to the remaining 75%, whom I cannot employ only because there is a government restriction Yeah, that I good should not question. be having more than 25% in my factory. I'm Sir, a factory guy or a shop guy or whatever. So right. if I have a 25% only in my factory, what do I do with the 75% remaining? Do I have to pay them salary, sir? Yeah. Shall I give my reply? Yes, sir. My reply is that you try to make the things rotation. जो एक जन को 25% को बोला तो उनको हर रोज नहीं बोलाओ. You call them rotation and give the opportunity to everybody. So that some people will get 10 days salary, some will get 12 days salary. Like that, justice will be given to everybody. That is my opinion. So only we cannot call on that particular people. Suppose some SOS person, maybe that person presence is required every day. That also we have seen. But other person we can call the rotation. So we can give the justice to everybody and accordingly you can pay the salary. So whomever we can rotate, whomever we cannot rotate. So समझ लो कि सर 25% है तो 25% को रोटेट किया, बाकी का 50% आदमी को नहीं बुला सकते हैं, तो क्या करेंगे उसका? सर इसमें फिर से एक ही है कि वो भी निगोशिएशन करके प्यार से, बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला है आफ्टर दिस, और इवन द वेटिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट ऑफ 54 डेज. तो इसमें भी क्या है कि अभी तक लेबर कमिश्नर के ऑफिस को चुप रहने को बोला गया है. तो इसमें जो भी प्यार से सुलझाएगा, मैंने देख रहा हूँ कि इवन 54 डेज में भी बहुत क्लाइंट्स ने, बहुत एम्प्लॉयर ने उनको टर्मिनेट किया है. वो दैट वाज ए इलीगल टर्मिनेशन हो जाएगा जब दैट मैटर विल गो टू द इन दैट 54 डेज. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड वी शुड नॉट टर्मिनेट. और सर जो आफ्टर 54 डेज 18th मई से सर जो भी है संगानी सर, my opinion is that because they are our employee, even they also know that my employer is in very bad shape. मैंने हमारे क्लाइंट के लिए क्या किया, किसका पगार ज्यादा पगार है, उनको हमने बोला कि certain period please adjust with us. So that everybody is done and everybody is agreed also. But sir, right. There is a terminology is leave without pay, LWP. Yeah. Sir, that is two options is that Sangani sir. In this case, some employees, some workers, they agree कि whatever balance मेरे पास जो leave है सब वो मेरा आप इसमें ले लीजिए और मुझे पगार दीजिए. That also has come. And some workers say नहीं मेरा leave मत काटिए. So law is, directive is clear. You cannot pressurize the employees or workmen to compulsorily adjust the leave. Sir, if I can, but I can let people go, no? After the 58 days. Yeah. I can let them go, no? Let them go in the sense कि नौकरी से बाहर निकाल सकता हूँ ना उनको. Yeah, see, उसमें भी सर प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो करेंगे. जो उसका लॉ है, जो प्रॉपर प्रोसीजर है, टर्मिनेशन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मेंशन किया है, लास्ट कम फर्स्ट गो, जूनियर को पहला जाने का, सीनियर को लास्ट में 1 month नोटिस पीरियड है,
or 1 month salary day, or retrenchment compensation, RC 15 days, like that, whatever procedure I Yeah, am following. after the procedure we can do that. Okay, fair enough. Sir, another question is, can an employer opt for ESIS voluntarily even if having less than 20 employees? Sorry, can you repeat? Less than 20? Can an employer Yes, opt sir. for ESIS voluntarily even if having less than 20 employees? Sir, answer is no. If you are in a only trading business, purely trading, no manufacturing, then number of employees required at 20 employees, and 20 employees salary wage is below 21,000. But voluntary coverage under ESI is not possible. Our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharam ji has declared that they will announce this scheme. But for that, this matter should come in the Parliament. Parliament has to approve. Then only voluntary coverage will start. But as on today, no. But if they want to, those companies ask that question. If they want to cover, please ask them to call me. I will show you some other way to get it covered. And this audience, I cannot give that idea. I will give the idea how to take that ESIC coverage. Fair Call me and I will give the idea. Sir. One more question. Sir, one more question for you. Is this that, for example, if I am paying somebody now 50% salary, where the employer and employee have agreed on accepting 50% salary. Now, when it comes to Diwali time and bonus time and gratuity time, how is that to be measured, sir? Sir, in this case, see, I will give the first reply. Bonus, gratuity, as well as the leave salary, calculation of the leave. Yeah. Suppose management has paid 54 days salary, so that 54 salary will not be counted for the bonus. Okay. The leave, as well as the gratuity. Okay. Continuous service. And balance period, whatever amount you pay, yeah, on that you have to pay the bonus. And my bonus slide is ready. Bonus is very important topic, where in that case bonus is payable only with basic plus DA up to 21,000. More than 21,000 they are not entitled, and bonus has to be paid not on, suppose my salary is 19,000, bonus has to be not paid on 90,000, it has to be paid on the basic salary of the scheduled employment. Yes. Fair enough, sir. I think we are running out of time. For everybody who's listening on this, today's program, we will try to put it up on YouTube as fast as possible with Ramesh sir's permission. And Ramesh I'm okay. Yeah. And we have Ramesh sir's documents also. So we'll put up those documents also on YouTube. So you all can all download it. Document don't put, please, my humble request. Okay. So how do they collect? How do they collect the documents? Shailesh bhai will mail the documents to all the participants. Yeah, that is the best. Because YouTube, that will pan India. I don't give that benefit. Okay. That is my today's program. Nowhere available in the country. मैंने जो बनाया है ना सब पूरे भारत में किधर नहीं मिलते. So there are a lot of people who are asking us that when can we get this thing. So we'll put it on YouTube. Yeah, you will put it up on YouTube. And on this seminar. Whoever wants documents, please mail us to GJPC, and we will mail you his documents back to you. Sir, you can send a mail to how do okay. You can give to all our members. Yes. Your members who are having email ID, please forward them and let them take the benefit of, due to some of any reason they may not be in a position to attend. They should take the benefit, because I have prepared this updated things. In my before 2 days I have prepared updated thing, so that I am sending you. एकदम minimum wage chart भी मैंने डाला है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी 3 दिन पहले minimum wage डिक्लेयर किया है. That chart also I have put in this document. Thank you very much, sir. We appreciate your coming. We appreciate all those people who are listening over here. Thank you for giving us your time, and thank you for listening. And so this is the GJPC Uncut Series 2020. And we will be having many more presentations like this in coming months. And you should look at the updates every time. Thank you very much, everybody. And one more thing, sir, I want to tell you. Those, sir, one more thing, Zangani sir. Because those who attend my seminar, I keep them aware about any changes in labor law.
not good morning, good afternoon for flower. No, no time. Yeah. As on today, I have given training to more than 60,000 पैन इंडिया, पूरे भारत में 16,000 से ज्यादा लोग को मैंने ऐसा सेमिनार दिया है, तो उनको मैं अपडेट्स भेजता हूँ, नो गुड मॉर्निंग. तो इफ they are interested, they can just send you to the email ID, so you can forward me. I will add Yeah. in my that, so I will keep them update on labor law. No good morning, no flower, nothing. आप Okay. मुझे आपका एसोसिएशन मुझे भेजेंगे, तो मैं Yes. सबको लेबर लॉ का आने वाले काफी समय तक, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मेरा प्रैक्टिस चालू रहेगा, तब तक उनको फ्री में बेनिफिट चालू रहेगा. Thank you, sir. Thank you very much. Really appreciate it, sir. Thank you. My pleasure. Okay, sir. Thank you. Thank you, Saresh bhai. Thank you, Advocate Soni. Thank you, participants. Thank you, Dolly madam. I'll be forwarding you Sure. this thing, study material, ma'am. Okay. Thank Okay. you. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you. So nice of you. Thank you very much, all.